Students, today we are going to discuss about the structure of these proteins, that means actin and myosin protein. Yesterday we have studied that sarcomere is made up of two kinds of protein, actin and myosin, and we can also call them contractile protein. And as you all know that actin are known as the thin filament, actin, or you can call them thin filament. So first we are going to discuss about the structure of actin molecule, and with the help of diagram it will be easy for you to understand. And this is the structure of an actin molecule. Here it is also given, and in your NCERT book it looks like this only. So this is the structure of the actin. So how you can see दैट दीज आर द हेलिकल स्ट्रक्चर. हेलिकल का मतलब होता है ऐसे वाउंड करके रखते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हेलिक्स, लाइक डीएनए इफ़ यू हैव सीन. तो वैसा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. एंड ईच एक्टिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2F फिलामेंट. यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम दैट दीज आर द F. here they have written F filament. So these are the F filaments. That means these actin filaments are हेलिकली कॉइल्ड. हेलिकली मीन्स अब आप समझ गए, एक दूसरे के साथ एकदम जैसे रस्सी होती है ना, रोप, वैसी देखो ये एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं. एंड दीज आर, अब ये यहाँ पर दो है ना, 1 and 2, तो यू कैन कॉल इट ईच, दे आर मेड अप ऑफ 2F फिलामेंट्स. तो ये 2F फिलामेंट हो गए ना, ये आपस में ऐसे करके वाउंड है. तो F फिलामेंट्स के साथ में एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं ये वाउंड होते हैं. एंड ईच F एक्टिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ G एक्टिन्स. अब ये जो बने हुए हैं ऐसे ये स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, तो दे आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन. ग्लोबुलर मीन्स जो सराउंडेड हो, जो राउंडेड हो, तो दीज आर कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन. ग्लोबुलर मीन्स spherical in shape. Now just I remove the ink so that you can easily see. Again I am going to repeat that each actin filament is made up of 2F filament. अब आप समझ रहे हैं what are F filaments. F एक्टिन्स बोल सकते हैं आप इनको, F फिलामेंट बोल सकते हैं, F फिलामेंटस एक्टिन बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं. दे आर हेलिकली वाउंड, मीन्स जैसे मैंने बताया रोप्स में होते हैं, ये वाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ. एंड ईच F फिलामेंट इज, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दे आर पॉलीमर. पॉलीमर मीन्स आपको पता है एक है तो मोनोमर, एंड दे आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम पॉलीमर. केमिस्ट्री में यू हैव स्टडीड इट. तो पॉलीमर्स ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन्स. अब ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर नोन एज जी एक्टिन्स. जी मीन्स ग्लोबुलर एंड ग्लोबुलर मीन्स स्फेरिकल. तो दिस प्रोटीन का जो शेप है ना ये सर्कुलर है, तो दैट्स वाई यू कॉल इट ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन्स. एंड 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन्स आर ऑल्सो, यू कैन सी इट हेयर. ये जो ब्राउन कलर के दिख रहे हैं ये वाले, these are another protein that are called tropomyosin. As you can see the name here, these are known as tropomyosin. And you can see that they run close to the F filament throughout its length. साथ साथ है ना इनके साथ में, F filaments के साथ साथ पूरे साथ में है पीछे तक. तो a complex protein is, again you can see it here, that are called troponin. ये यहाँ पर दिए हुए. if I change the color and so that you can see that these are the troponins, ये यहाँ पर दिए हुए. These are the small subunits, they are known as troponin. And what is the function of troponin? These subunit masks the active binding sites for myosin on the actin filament. That means actin filaments पर कुछ binding sites होते हैं जहाँ पर myosin filament attach होते हैं, उनको ये मास्क करते हैं. That means hide कर देते हैं whenever the muscle is in the relaxing state, or you can say sarcomere is in the relaxing state. तो active protein के बारे में again I am just giving a quick revision to you, that actin proteins are made up of 2 kinds of F filamentous actin molecules, or you can say filamentous actins. They are helically coiled. If you make the small sentences, it will be easy for you students to learn this. Like I am just telling you, each actin filament is made up of 2 F filament actins. These are helically coiled. F actin is a polymer of globular actins. And 2 filaments of another protein, that is tropomyosin, also run close to the F actins throughout its length. And complex protein troponin is also present at regular intervals on the tropomyosin. Means tropomyosin पर जगह जगह पर है ना, ये वाले आप देख सकते हैं with the help of ink. ये वाले है ना, ये वाले जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको, ये ट्रोपोनिन है. दे मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन
ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो लाइक दिस यू कैन मेक अ शॉर्ट नोट। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करके ब्रेक करके आप ये पूरा स्ट्रक्चर लर्न कर सकते हैं। एंड ये जो ग्लोबुलर जी प्रोटीन्स जिनको हम कह रहे हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, अगर जी लिखा हुआ है कैपिटल, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबुलर, बिकॉज प्रोटीन आर आइदर दे आर ग्लोबुलर इन शेप और समटाइम दे आर ऐसे स्पाइरल होते हैं। तो दो तरह के प्रोटीन्स तो आप बेसिकली जानते ही हैं, तो उसलिए आपको बताया। एंड दिस जी एक्टिन मॉलिक्यूल हैज़ एक्टिव साइट्स। ये जो जी मॉलिक्यूल्स ये सर्कुलर दिख रहे हैं, दे हैव सर्टेन साइट्स एंड दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। और उनमें क्या होते हैं, एडीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं विच एक्ट एज बाइंडिंग साइट्स ऑफ हेड ऑफ मायोसिन, बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं, एक्टिन मॉलिक्यूल का पढ़ रहे हैं। एंड एक्टिन एंड मायोसिन ये आपस में ज्वाइन करते हैं, ओनली देन मसल कैन बी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। सो what I am trying to explain you that G molecules, I am talking about these globular molecules, that G actin molecules has active sites. Active sites means जो रेडी होते हैं काम करने के लिए ना, एक्टिव होते हैं, तो एक्टिव साइट्स होते हैं यहाँ पर। एंड दीज एक्टिव साइट्स हैव ADP मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ADP मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास। एंड दीज ADP मॉलिक्यूल्स एक्ट एज बाइंडिंग साइट्स ऑफ हेड ऑफ मायोसिन। मीन्स अभी तो ये एक्टिन है, जब मायोसिन आएगा तो उसको अपने साथ अटैच करने का काम करते हैं, उसको बाइंड करने का काम करते हैं ये ADP मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जब तक कि एक्टिन एंड मायोसिन का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, दोनों की फ्रेंडशिप नहीं होगी, तो मसल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो एक्टिन एंड मायोसिन दोनों को साथ मिलकर काम करना होता है, तो उनको बाइंड करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है ना, तो उनको एक्टिव साइट्स चाहिए होते हैं जहाँ पर वो बाइंड कर सकें, तो वो उनको मायोसिन प्रोवाइड्स करते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द actin protein. I hope you can understand it well. Now we move on the another protein that are called मायोसिन प्रोटीन। और इनको हम मायोसिन को मीरोमियर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये मोनोमर से मिल करके बने होते हैं। तो व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दीज प्रोटीन्स, दैट मीन्स मायोसिन। तो मायोसिन इज़ अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। अगेन जब भी हम प्रोटीन की बात करेंगे तो पॉलीमराइजेशन वर्ड तो हमें बोलना ही पड़ता है। एंड पॉलीमराइजेशन का मीनिंग मैं भी आपको बता चुकी हूँ, दिस इज मोनोमर 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 एंड दीज ऑल कंबाइन एंड फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म अ प्रोटीन, है ना। स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, आपको पता है, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन मोनोमर से ही बनेंगे ना, एक एक मॉलिक्यूल से ही बनेगा, तो उसको मोनोमर बोलते हैं। तो ईच मायोसिन, दैट मीन्स मायोसिन मीन्स, अभी आपको याद हो गया ना, मायोसिन मीन्स थिक फिलामेंट्स। अगेन आई एम गोइंग टू राइट यू थिक फिलामेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ थिक फिलामेंट। तो ये थिक फिलामेंट्स कैसे बने होते हैं और कैसे होते हैं। थिक फिलामेंट्स आर द पॉलीमराइज्ड प्रोटीन एंड बहुत सारे मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन, उनको हम क्या बोलते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, एम से मोनोमर भी होता है एंड हम एम से क्या बोलते हैं इनको, मीरोमायोसिन, वी कैन कॉल इट मीरोमायोसिन। तो ये जो मोनोमेरिक प्रोटीन है दैट आर नोन एज मीरोमायोसिन। तो यहाँ पर आप मोनोमेरिक प्रोटीन की प्लेस पर क्या बोल सकते हैं, मीरोमायोसिन। तो नाउ यू कैन से दैट मायोसिन फिलामेंट्स इज मेड अप ऑफ मीरोमायोसिन्स, है ना, बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलकर बनते होते हैं ये। And again I am going to remove the ink so that you can see the diagram also, because this diagram is given here and it is of myosin protein. So each miromyosin has two important parts. Now you can see it here. यहाँ पर दो important part हैं हर miromyosin के, and miromyosin is a monomer. What are the two important part is, one is a globular head with a short arm. जो यहाँ पर आप देख सकते हो, globular means rounded, ये head हो गया, head जैसे ही लग रहा है आपको, head structure है, and this is the arm like structure. तो इनके पास क्या होता है, globular head with a short arm होता है, that is called इनको हम HMM बोल सकते हैं, heavy miromyosin, HMM, and you can call it HEAVY, heavy miromyosin, you can call it like that, HMM और heavy miromyosin. And another thing क्या होती है, टेल होती है पीछे पड़ी हुई, and this is called as light miromyosin. तो that means it is made up of two components. Again I remove the ink and now you can see it clearly that these are the head portion and the यहाँ पर छोटा सा आर्म पोर्शन होगा, उसको आप कहेंगे हैवी मीरोमायोसिन. देन लेटर देयर इज अ टेल, यू कॉल इट नॉट देम मीरोमायोसिन. तो देयर आर टू कॉम्पोनेंट्स, हेड एंड शॉर्टर आर्म. यू कैन सी दिस प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस, मतलब ये जगह जगह पर ये इसी तरह से उठी रहती है, एंड इट फॉर्म्स द क्रॉस आर्म. ये क्या बना रही है,
क्रॉस आर्म बना रही है। तो हैवी मीरोमायर्स एंड जो लाइट मीरोमायर्स हैं ये मिल करके एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं मायोसिन प्रोटीन का। एंड हेड लाइज एट द टिप ऑफ स्मॉल साइज्ड आर्म, यहाँ पर आप देख रहे हो स्मॉल साइज्ड आर्म के पास से, एंड इट फॉर्म्स द क्रॉस आर्म, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म्स बनाते हैं। एंड क्रॉस आर्म्स ऑफ डिफरेंट मायोसिन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल, कोई एक ही तो होता नहीं है, लॉट्स ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ मसल फाइबर। तो डिफरेंट मायोसिन मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दे फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस विद एक्टिन मॉलिक्यूल। क्रॉस ब्रिजेस मीन्स होता है कनेक्शन बनाना, ठीक है, जैसे ये एक चीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई, इनके बीच में ये कनेक्शन बनाना, ये बन गए, इससे जुड़ गए ना, इस वाले ब्लू कलर की लाइन से जो मैं बना रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस। ये क्रॉस ब्रिजेस बना रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो क्रॉस आर्म्स हैं, ये जो बना हुआ है जो स्ट्रक्चर है, ये क्रॉस आर्म का स्ट्रक्चर, तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये डिफरेंट मायोसिन मॉलिक्यूल्स में अलग अलग मायोसिन बहुत सारे होते हैं ना, तो दे आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओरिएंटेड मीन्स उनका प्लेसमेंट, या आप कह सकते हो उनका स्ट्रक्चर जो है, जिस तरह से वो अरेंज होते हैं, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दे फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस विद द एक्टिन मॉलिक्यूल। क्योंकि अब मायोसिन को एक्टिन के साथ जुड़ना है, सपोज दिस इज एक्टिन मॉलिक्यूल एंड दिस इज मायोसिन मॉलिक्यूल, ठीक है, अब इनको जुड़ना है, तो ये किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं, इधर से इधर से इधर से, कैसे भी, तो दीज आर कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस। ये जो मैं पिंक कलर के बना रही हूँ, तो इनके थ्रू ये जुड़ते हैं, इन दोनों को अटैच होना होता है। एंड हाउ इट हैपन्स that they in the presence of enzyme myosin ATPase, and myosin ATPase where it is present, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों, आपको याद रखना है इसका नाम भी, it is present into the head region, right? तो in the presence of enzyme myosin ATPase which is present on the head region, this is very much important, and also it is the cause of the formation of this connection, that means actin and myosin filaments के जो बनते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ये होता है। सो मायोसिन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ द एक्टिन एंड वन इज़ द मायोसिन, बट जो बर्डन है सारा रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का, वो किस पर आ गया, वो आ गया मायोसिन पर, कि मायोसिन के पास, बिकॉज दीज आर द बाइंडिंग साइट्स। अब आप यहाँ पर देखते हो बच्चों, they have given two sites, one is एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड अनदर इज एटीपी बाइंडिंग साइट। और कोई भी काम बायोलॉजी में करने के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर द एनर्जी, लाइक आपको अपनी लाइफ चलाने के लिए, हर काम के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है ना, उसके बिना तो हमारा काम होता नहीं है। सिमिलरली अगर सेलुलर एक्टिविटीज़ और फंक्शंस होते हैं, दे ऑलवेज रिक्वायर एटीपी मॉलिक्यूल्स, एंड इफ़ यू हैव दैट पावर टू प्रोड्यूस एटीपी, तो आपके सारे काम आराम से हो जाते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ एक्टिन बाइंडिंग साइट। मैंने आपको बताया कि जब तक एक्टिन एंड मायोसिन, ये एक्टिन हो गया, ये मायोसिन हो गया, अगर ये बाइंड नहीं करेंगे आपस में, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तो इनको बाइंड करने के लिए क्रॉस ब्रिजेस बनने पड़ते हैं इनके बीच में, और इसको बनने के लिए, क्रॉस ब्रिजेस बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है बच्चों, एटीपी चाहिए होता है, प्लस बाइंडिंग साइट चाहिए होता है। दैट मीन्स वेयर दे हैव टू बाइंड, वो जगह भी तो चाहिए जहाँ पर ये बाइंड करे। तो दीज आर द प्लेसेस, यहाँ पर लिखा ना एक्टिन बाइंडिंग साइट, और ये है मायोसिन का मॉलिक्यूल। तो दिस मॉलिक्यूल प्रोवाइड्स द एक्टिव साइट्स वेयर एक्टिन मॉलिक्यूल कैन बी बाइंड, है ना, वो उसको प्रोवाइड करता है प्लेस जहाँ पर एक्टिन मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है, तो एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है दोनों की, एक्टिन मायोसिन के साथ साथ आ जाते हैं, एंड देन दे perform their function. And what is the function? Function is to contraction and relaxation, because we are talking about the muscles, and muscles are made up of sarcomeres, so we are talking about that. So this is very important. And mechanism of contraction of muscle fiber I will discussing is in the next lecture. Here I only just explain you the structure of actin and myosin protein, because without knowing the structure of these two proteins, it is very difficult for you to understand the theories of muscle contraction. So for that I have explained you the structure of actin and myosin, and I hope you understand it well, and I just hope कि आप इनको learn भी कर लो, study भी कर लो, so that in the next lecture when we discuss the mechanism of muscle contraction, it will be easy for you to understand the thing. And thank you for now.